Hello. Yeah. I think the audio is fine. This is the second class of Economic Growth chapter for CFA Level 2 live. Please confirm those who are attending the live class whether the audio is fine. CFA Level 2 Economic Growth class number 2. अभी तक किसी का मैसेजेस नहीं आया है तो आई एम अफ्रेड वेदर दिस थिंग इज गोइंग ट्रांसमिशन. Okay, now Davisha Bagga has sent a message. Okay, perfect. So we are on. So if you remember first class, we spoke about the fact that this chapter is about long-term trend growth rate. Okay, जो potential GDP है उसका growth rate क्या होगा जिसके basis पे strategic asset allocation is made. It is not about the cyclical fluctuations around the trend जो level 1 में था. It is about the long-term trend growth rate. We will see when we enter the chapter properly, this is the warm-up going on, that long-term trend growth rate is the most important determinant of long-term equity performance and fixed income performance. And the performance of different asset class, equity, fixed income, real estate, that depends upon that trend growth rate. If you are a global asset manager, the CIO of a global fund, then how much do you allocate to various economies is majorly dependent upon your forecast of the trend growth rate. It is said that whatever the Modi government did in 2015, 16, 17, usme we had a slowdown, but we were trying to improve our fundamentals and try to increase our trend growth rate upwards. Okay, by doing everything that we did in those period, उससे अपने trend growth rate को ऊपर बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे by way of more financialization of the economy so that we are not dependent upon external capital, by way of more digitization of the economy so that transparency and compliance improved, by way of huge infrastructure investments, okay, with the help of which the efficiency of business improved. Of course, a lot needs to be done. So this chapter is about that. Investment in education, investment in infrastructure, investment in health, hygiene, okay, having proper legal rights, protection of intellectual property rights, okay, so all those things. The fact that we want to increase the savings rate of the economy, okay, we want to increase the investment rate in the economy, the capital formation in the economy, we want to strengthen the financial system, the banks, the intermediaries, okay, so that cost of capital can come down and more projects can become viable. Okay, we want to shift from agriculture to manufacturing. Services में already ज़्यादा है, agriculture से manufacturing में on an incremental basis because the productivity of labor is higher over there. We want to increase the female labor force participation rate, okay, and so on and so forth. तो ये जो common sensical चीज़ होती है ना, किसी को लगेगा सर ये तो common sense की बात कर रहे हैं, वही इस चैप्टर में कि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ऑफ एन इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करे एंड जो इकोनॉमी सही काम कर रहा है, विच एवर इकोनॉमी, वो इकोनॉमी का ट्रेंड ग्रोथ रेट विल बी हायर एंड इक्विटी मार्केट्स विल परफॉर्म वेल. वी शुड एलोकेट मोर टुवर्ड्स दोज इकोनॉमीज. ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू अ टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. ठीक है, y इज इक्वल टू a इंटू k पावर अल्फा, l पावर माइनस अल्फा. ठीक है, a was the total factor productivity, alpha was the capital share of output, 1 minus alpha was the labor share of output, constant returns to scale. If both capital and labor go up by 1%, output will go up by 1%. ये discussion हुआ था अपना. Then the Solow model equation कि growth rate of real GDP GY is equal to growth rate of total factor productivity GA plus alpha into GK plus 1 minus alpha into GL. ये सारा कॉपी में लिखा हुआ आपके. उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन किए जहां पे आपको जीए निकालना था बैक ट्रैक से, बिकॉज जीए इज नॉट विजिबल, इट हैज टू बी बैक्ड आउट. ओके, उसके बाद जाके वी डिस्कस दैट सर ये जीएल जो है ना, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स मैटर, बट व्हाट आल्सो मैटर्स इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. तो उसका एक वंडरफुल क्वेश्चन किए थे जहां डिक कर करके कैलकुलेशंस था और वहाँ पे फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज प्रोजेक्टेड टू गो अप इन द नेक्स्ट 10 years एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो बढ़ने से ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ. करेक्ट है. उसके अलावा वी डिड आई थिंक द फैक्ट दैट
कंट्री में सेविंग्स कमती है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो द लैक ऑफ दैट डेफिसिट हैज़ टू बी मेड अप बाय फॉरेन कैपिटल. ठीक है, एस माइनस आई इज इक्वल टू करेंट अकाउंट बैलेंस. तो एस लेस देन आई, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कैपिटल अकाउंट से पैसा आना पड़ेगा, एफडीआई एफपीआई. तो इन दैट केस वो अलग पूछे थे आपसे कि कितना परसेंटेज बताओ गैप है जो कि फॉरेन कैपिटल से आना पड़ेगा. प्लीज़ एक्नॉलेज वेदर यू आर ओके विथ इट अप टिल नाउ. वार्म अप चल रहा है, नोबडी नीड्स टू बी वरिड. ठीक है सर, ये चैप्टर किसके बारे में है सर? ट्रेंड ग्रोथ रेट के बारे में. सर ट्रेंड ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करता है? सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पे, हेल्थ हाइजीन एजुकेशन पे, लीगल लॉज रेगुलेशंस पे, फाइनेंशियल सिस्टम के रेजिलियंस पे, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है. ऑल्दो वो किया नहीं हमने. उसके अलावा द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू ए के टू द पावर अल्फा एल पावर 1 माइनस अल्फा. ओके, उसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला पार्ट. उसके अलावा अगर अपना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम है तो द मनी हैज़ टू कम फ्रॉम अब्रॉड. तो 3 क्वेश्चंस किया था अपने, एक आइटम सेट चल रहा था. सही है, एवरीबडी हैज सेड ओके. सो इन दैट केस लेट मी कंटिन्यू विद द आइटम सेट. ओके, तो ये आइटम सेट था, आपसे शेयर भी हुआ था कि अपने वी आर एन इमर्जिंग मार्केट ग्रोथ फंड, और आप इन्वेस्टमेंट कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो. और आपको जो चीफ इकोनॉमिस्ट है प्रिया शर्मा, उसने एक मेमो भेजा है मार्च 15, 2024 को. इट इज़ अबाउट इंडियाज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ असेसमेंट एंड कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटी. इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या होगा और कैपिटल फ्लो से इंडिया कितना सेंसिटिव है. उसमें मल्टीपल डायमेंशन से अपने इंडिया को एग्जामिन कर रहे थे. फर्स्ट डायमेंशन हो गया कि हिस्टोरिकली इंडिया का क्या हुआ है, ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या था, इंडिया का डेमोग्राफिक्स, उसके वाइज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा था. सेक्शन 3 चल रहा था जिसका फर्स्ट पार्ट कर लिए थे कि इंडिया में जो ग्रॉस नेशनल सेविंग्स है इट इज़ 1.07 ट्रिलियन, यानी 1070 बिलियन, जबकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज़ 1180. तो अपना सेविंग्स जो है वो एडिक्वेट नहीं है. तो मैंने डिफरेंस पूछा था, वो डिफरेंस निकाले थे अपने, कितना फॉरेन कैपिटल आना पड़ेगा. ठीक है ना सर, मेरे को ये नेट से निकालने का मन है, तो नेट से भी निकाल सकते हैं. तो जो ग्रॉस सेविंग्स है उसको नेट सेविंग से बदलना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेस करके. 1070 में से 370 लेस होगा तो नेट सेविंग्स आ जाएगा. नेट सेविंग्स माइनस 810 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा. ग्रॉस माइनस ग्रॉस और नेट माइनस नेट. अब आगे बढ़ रहा हूं. कंपेरेटिव कैपिटल इंटेंसिटी 2023, चलो देखते हैं. इंडिया में कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी रेशियो इज 2.76. चाइना में कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी रेशियो इज 3.45. साउथ कोरिया में कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी रेशियो इज 3.82. यूनाइटेड स्टेट में कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी रेशियो इज 3.65. तो इंडिया में कैपिटल स्टॉक टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है. देयर आर लेस मशीन्स, ओके, compared to the GDP that we have. Mehta calculates बोला है, I think Mehta, ठीक है, Mehta calculates at India's current capital output ratio, the marginal product per dollar of capital is substantially higher than in mature economies. Marginal product per dollar of capital मतलब $1 कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे ना तो उस केस में उससे कितना आउटपुट बढ़ेगा. Marginal product of capital means if you invest $1 in capital, how much will the output go up? Okay, it's like the output capital ratio, incremental output capital ratio. तो बोल रहा है at India's current capital output ratio, the marginal product per dollar of capital is substantially higher than in the mature economies. मेहता ये बोल रहा है. What do you think? सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? At India's current capital output ratio, the marginal product per dollar of capital is substantially higher than in mature economies. इंडिया में ₹1 कैपिटल में लगाएंगे तो उससे जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू चाइना में, साउथ कोरिया में, यूएस में. व्हाट डू यू थिंक? टेक योर टाइम, अप्लाई कॉमन सेंस. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कितना कैपिटल चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए.
और नीचे मेहता बोल रहा है कितना आउटपुट आएगा एक यूनिट ऑफ कैपिटल से. There are no replies, therefore I am taking my own time. Let me explain. Asset turnover ratio का क्या फॉर्मूला होता है, प्लीज टेल मी. एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है एफएसए में? एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आप फटाफट रिप्लाई करेंगे तब तो मैं इंटरैक्टिव वे में पढ़ाऊंगा, वरना वन वे ट्रैफिक चालू कर दूंगा. एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, जवाब आया सा सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट. सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, हायर द बेटर. ठीक है, इट गोज टू शो एसेट्स में पैसा लगा के कितना टाइम सेल्स कर पा रहे हो. ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट इज द एसेट टर्नओवर रेशियो. ठीक है ना, सेल्स को हमेशा समझना चाहिए वो हो गया जीडीपी ऑफ द कंट्री. सेल्स जो है ना वो हो गया कंट्री का जीडीपी, और एसेट्स हो गया कैपिटल. सोचो एसेट्स क्या हो गया, कैपिटल. तो एक तरह से वी वांट दैट कंट्री का जीडीपी टू कैपिटल रेशियो हाई हो, यानी कि कैपिटल में इन्वेस्ट करे तो जीडीपी ज्यादा प्रोड्यूस हो. इसका मतलब वी वांट दैट द कैपिटल टू जीडीपी रेशियो शुड बी लो. कैपिटल टू जीडीपी रेशियो अगर लो है, लो, तो इसका मतलब जीडीपी टू कैपिटल रेशियो हाई होगा. ठीक है, राइट नाउ जो फिगर्स दिया हुआ है इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने में सबसे कमती कैपिटल कहां पे चाहिए? 1 यूनिट ऑफ जीडीपी लाने में सबसे कमती कैपिटल कहां पे चाहिए? इंडिया में 2.76. तो जाहिर है इंडिया में 1 यूनिट ऑफ कैपिटल लाएंगे तो सबसे ज्यादा जीडीपी बनेगा. ओके, रेसिप्रोकल टाइप. तो मेहता ने एकदम करेक्ट बोला है. एट इंडियाज कैपिटल आउटपुट रेशियो द मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर ऑफ कैपिटल इज सब्सटेंशियली हायर देन इन मैच्योर इकोनॉमीज. एक बार नोट्स पे आते हैं. कल का जो नोट्स चल रहा था, तो कल का जो नोट्स चल रहा था उस पर अपने ये किए थे y इज इक्वल टू ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा. प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए, सेकेंड क्लास. ठीक है, द प्रोडक्शन फंक्शन. लेट्स डिवाइड बाय एल ऑन बोथ साइड्स. So we get y by L is equal to a k to the power k by L to the power alpha. देखो ये समझ में आया क्या? y by L is equal to a k by L to the power alpha. देखो दोनों साइड में लेबर से डिवाइड किए, तो राइट साइड में लेबर से डिवाइड किए तो नीचे में L पावर 1 आ गया, ऊपर L पावर 1 माइनस अल्फा है. राइट साइड में अगर L पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी L पावर 1 माइनस अल्फा है, नीचे में L पावर 1 है. तो इंडिसेस लगाएंगे तो L पावर माइनस अल्फा ऊपर बचेगा, जो कि नीचे हो गया L पावर अल्फा. तो K बाई L टू द पावर अल्फा सिंपल इंडाइसेस है, बेसिक मैथमेटिक्स. इज इट क्लियर? L से दोनों जगह डिवाइड किया तो ये आ रहा है. आई होप इट इज क्लियर. सो फॉर कन्वीनियंस पर्पस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने के स्टार, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वाई स्टार. सो वाई स्टार इज इक्वल टू ए के स्टार टू द पावर अल्फा. ओके, पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इनटू कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर इनटू अल्फा. ये जो के स्टार है वो के स्टार को समझो कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर. तो जो लेबर है उनके पास कितना कैपिटल है? ऑब्वियसली लेबर के पास कैपिटल ज़्यादा होने से वो बेटर काम कर पाएगा. कैपिटल बने मशीन्स. y बाई एल इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, मतलब प्रोडक्टिविटी. y by L is productivity. So the productivity of labor depends upon number 1 technology, number 2 it depends upon how much capital is provided to labor. It's common sense. मैथ्स के बिना सोचो सर, लेबर का प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगा कि उसको कैसा टेक्नोलॉजी में काम करने को दिया गया है
और उसके पास कैसे मशीन्स दिए गए काम करने के लिए। तो y स्टार इज इक्वल टू a k स्टार टू द पावर अल्फा। सो ग्रोथ रेट ऑफ y स्टार is equal to growth rate of A plus alpha into growth rate of K star. Growth rate of Y star is equal to growth rate of A plus alpha into growth rate of K star. I hope it is fine with you. बॉक्स में डाल रहा हूं। बुक में Y स्टार K स्टार नहीं लिखा है, बुक में स्मॉल y लिखा है। तो वो जो चल रहा था ना ऊपर, ये सब कैपिटल Y है और उनको वो लोग स्मॉल y और स्मॉल k लिखा है, पर ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाते हुए कैपिटल Y स्मॉल y का डिफरेंस समझ में आता नहीं है। therefore I tend to write Y स्टार एंड K स्टार। I hope it is fine। तो ये जो हमने लिखा ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को अगर प्लॉट करें, प्लॉट, सो यू हैव K स्टार ओवर हियर, K स्टार माने K बाई L, यू हैव Y स्टार ओवर हियर, Y स्टार माने Y बाई L। obviously the curve will be upward sloping। This is the curve, okay, this is the curve। Y star is a function of K star, Y star is a function of K star। India is somewhere over here, this is India। South Korea, Japan, US are over here। South Korea। So if we draw a tangent over here and a tangent over here, you will find that कौन से कंट्री में, इंडिया में या साउथ कोरिया में, कैपिटल को K स्टार को इंक्रीज करने से, K स्टार को इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी यानी Y स्टार ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। कौन से कंट्री में K स्टार को इंक्रीज करने से Y स्टार ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा? Y स्टार Y एक्सेस पे है ना, कौन से कंट्री में K स्टार इंक्रीज करने से Y स्टार ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा? दिख रहा है आप लोग को? सो इंडिया में K स्टार को इंक्रीज करने से Y स्टार ज़्यादा रेट से बढ़ेगा। इंक्रीजिंग दिस इज कॉल्ड कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग, तो कैपिटल डीपनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग K स्टार। ओके, लेबर को और ज़्यादा मशीन्स देना काम करने के लिए। तो कैपिटल डीपनिंग करने से we will move along the red curve, productivity will go up। But if South Korea does capital deepening, have a look, South Korea अगर capital deepening किया यानी K स्टार को बढ़ाया, तो लग रहा है ना कि Y स्टार तो ऑलमोस्ट बढ़ रहा ही नहीं है। Y स्टार तो ऑलमोस्ट बढ़ रहा ही नहीं है। अगर साउथ कोरिया K स्टार को इंक्रीज करता है तो आपको दिख रहा होगा कि Y स्टार तो ऑलमोस्ट बढ़ रहा ही नहीं है, यानी वहाँ पे K स्टार को इंक्रीज करने से कुछ होने वाला नहीं है। इफ यू वांट टू improve the productivity of South Korea, it doesn't seem that capital deepening will have a significant effect। Can you see that? If you want to increase the productivity in South Korea, it doesn't seem that capital deepening can be a significant contributor to increasing the productivity in South Korea। दिख रहा है आपको? It doesn't seem that capital deepening can be a significant source of increasing the productivity of South Korea, but it also seems that capital deepening can be a significant source of increasing the productivity in India। करेक्ट है? लिख दो बगल में। It seems that capital deepening bracket, that is increasing the capital per unit of labor. It seems that capital deepening bracket, that is increasing the capital per unit of labor। Language था, it seems that capital deepening bracket, increasing the capital per unit of labor bracket close, can be an important productivity booster for India। Can be an important productivity booster मतलब जो Y by L को बढ़ाएगा, because productivity is Y by L।
can be an important productivity booster for India, but not for South Korea. Can be an important productivity booster for India, but not for South Korea. But not for South Korea. Of course, you can argue कि सर दोनों का आपने सेम कर्व कैसे ले लिया, इंडिया और साउथ कोरिया का? दोनों का हो सकता है ए अलग है, ए कैपिटल ए, दोनों का अल्फा सेम नहीं है तो कर्व अलग होगा ना, पर एक बार समझाने के लिए मैंने ले लिया। यानी जब मैं इंडिया और साउथ कोरिया दोनों को सेम में कर्व में डाला हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों का ए और अल्फा सेम है। आप लोग क्लियर हो क्या? मैं बोल रहा हूं अगर मैंने एक ही कर्व में इंडिया और साउथ कोरिया को मार्क कर दिया है, दैट मीन्स आई एम अज्यूमिंग दैट दोनों का जो ए है ना कैपिटल ए और जो अल्फा है वो सेम है, बिकॉज कैपिटल ए एंड अल्फा वे द पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन, जो कि ट्रू नहीं है बट एक बार समझने के लिए। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि सर कोई भी कंट्री जो इमर्जिंग मार्केट कंट्री या फ्रंटियर नेशन है, तो फ्रंटियर नेशन तो कैपिटल स्टार्व्ड होते हैं, उनमें कैपिटल ज़्यादा होता नहीं है, सो दे आर ऑपरेटिंग एट द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द रेड कर्व, शुरू का पार्ट ऑरिजिन के पास। तो वहाँ पे अगर उनके पास और ज़्यादा कैपिटल आए तो उस केस में दैट विल रियली इन्हांस देयर प्रोडक्टिविटी। बट अगर एक नेशन आगे बढ़ते बढ़ते डेवलप्ड नेशन बन गया, जो कि साउथ कोरिया बन गया है, 1970s 80s में साउथ कोरिया का अपना वाला ही हाल था। 1970s 80s में साउथ कोरिया का अपना वाला ही हाल था। ठीक है, तो साउथ कोरिया वहाँ था जहाँ इंडिया था, बट 20-30 सालों में साउथ कोरिया जो है वो ऊपर पहुँच गया। इनफैक्ट वो इस कर्व पे भी नहीं है, ये कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो गया है, पर मैं अभी वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई विल वेट फॉर इट। तो साउथ कोरिया कैपिटल डीपनिंग करके हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में पहुंच गया है। बट द पॉइंट इज दैट आज के दिन पे साउथ कोरिया के लिए कैपिटल डीपनिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? नहीं है। आज के दिन साउथ कोरिया के लिए कैपिटल डीपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ कोरिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? साउथ कोरिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि काश उसका कर्व यहाँ चला जाए। साउथ कोरिया का प्रोडक्टिविटी अभी कैसे इंप्रूव हो सकता है? केवल एक ही तरह से, काश उसका कर्व ऊपर चला जाए। कर्व ऊपर शिफ्ट होना मतलब जो ए है ना, वाई स्टार इज इक्वल टू ए इंटू के स्टार पावर अल्फा, वो ए को बढ़ना पड़ेगा। ए, ओके, ए को बढ़ना पड़ेगा। अल्फा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ए को बढ़ना पड़ेगा। तो फॉर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इफ दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, इन दैट केस विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स, it is the growth rate of total factor productivity. It is growth rate of TFP. They cannot do it by increasing K star. They can do it by increasing TFP. Okay, growth rate of total factor productivity. Deepika is saying technology. Total factor productivity was not only technology but other aspects also. ठीक है, बट आप मन में अगर टेक्नोलॉजी सोचते हो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, टेक्निकली टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट अदर फ्रेमवर्क्स ऑल्सो। ठीक है, मन में सोचने वाइज ओके है। दैट इज वाई यू विल फाइंड दैट ये डेवलप्ड इकोनॉमीज में कितना ज़्यादा फायदा है। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का पर कैपिटा इनकम क्या होता है? हाई। सो देयरफॉर दे आर एबल टू डिवोट मोर रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज टुवर्ड्स इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका पर कैपिटा इनकम हाई होता है, देयरफॉर नेचुरली दे आर एबल टू डिवोट मोर रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज इनटू इनोवेशंस, R&D. They are able to devote more resources or less resources. More resources. Emerging market countries, their per capita income is low, so they are able to devote less resources. They don't have the money to do R&D. Okay, they are copiers. They will basically wait for foreigners to invent new technology, and then we should be qualified enough. We should be qualified enough. कंप्यूटर चलाना आता हो जिससे कि कम से कम वी कैन अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज। जब लोग टेलीविजन पे, यूट्यूब पे क्रिटिसाइज करते ना इंडिया को कि क्या किया मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब वो लोग तो क्या क्या कर लिए एआई में, अपने कुछ कर ही नहीं पाए। बोलना बहुत आसान है, सब चीज़ रुपया से होता है। इंडिया डजंट हैव द मनी। इंडिया हैज़ immensely focused on primary and secondary education, because primary and secondary education brings out an output, human talent which is not able to innovate,
not able to discover new technology, but which is able to at least adopt the technology developed abroad. Understood? Adoption of technology. वही तो पूरा अपना IT सेक्टर है, जो IT सेक्टर पीछे का काम करता है, वैल्यू एडेड रीसेलर्स है. ओके, वो लोग एक सैप लेंगे और सैप को इंस्टॉल करेंगे बैंकिंग सिस्टम में, TCS, और TCS उससे कमाएगा 50 करोड़ 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बाय इंस्टॉलिंग अ सैप एट अ पर्टिकुलर बैंकिंग नेटवर्क. वैल्यू एडेड रीसेलर्स CFA लेवल 1 में था, बिजनेस मॉडल चैप्टर में. ठीक है, तो सैप develops the technology, TCS customizes, installs, provides a service. So TCS earns only that part of the value chain, you can understand, while the main part is earned by SAP, earned by Microsoft. So it would be easy to criticize the Modi government that kya kiya, but the point is that things cannot happen overnight, especially under such a low per capita income, and especially given the political setup of democracy, okay, where decisions cannot be taken autocratically, they can be taken democratically, and then you know Rahul will stand up. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का बात होगा तो राहुल विल स्टैंड अप. नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए. देखिए देश को बेचा जा रहा है व्यापारियों को. अगर फॉरेन पार्टीज आ रहे हैं, देखिए देश को बेचा जा रहा है फॉरेनर्स को. डू आई मीन टू से दैट बेच देना चाहिए? नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. मैं तो जो टोन रिक्वायर्ड है उस टोन में बोल रहा हूं. सो बहुत सारा चीज जो इस चैप्टर में है, वो अगर कोई पर्सन कॉमन सेंस लगाए तो वो देखेगा द चैप्टर इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू द टेक्निकलिटीज एक्सप्लेन्ड ओवर दैट. इट्स कॉमन सेंसिकल कि एक गरीब नेशन कैसे उसके पास पैसा आएगा. गरीब नेशन के पास कैसे पैसा आएगा? खुद का सेविंग सफिशिएंट है नहीं, तो सर लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा सेव करने के लिए. और लोगों को जब इंकरेज करेंगे सेव करने के लिए और आईपीओ आएगा तो अपने जाके ये अंगुली उठा रहे कि देखो आईपीओ कैसे आ रहा है, कितना खराब बात है. तो आईपीओ का पैसा तो सबसे ज्यादा ओके रिस्क कैपिटल है ना जो रेस किया जा रहा है. दैट डज नॉट मीन दैट आई एम जस्टिफाइंग द आईपीओ ऑफ लेंसकार्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम ट्राइंग टू से फाइनेंशियलाइजेशन हुआ, लोगों में रिस्क लेने का एटीट्यूड आया. इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन डिपॉजिट्स, पीपल आर पुटिंग मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट. So obviously that is economic growth chapter, because that is increasing the savings rate of the economy. So our dependence on foreign capital is reducing because foreign capital is volatile. If there is a ये जो मेगा 7 है, ये आजकल मेगा 10 बोलते हैं, because Palantir ये सबको भी आजकल ले लेते हैं उसमें. अगर ये ब्रेक होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, will it affect our country? Yes. Okay. Any problem over there is going to affect our country also. So there will be a risk of environment. And capital will stop coming over there. So if we are unduly dependent upon foreign capital, in that case we'll be shocked. Our machinery's economy will come to a standstill, and therefore it needed to be done. And for the government to do all this, it required proper taxes and compliance and GST. The government did that through bank accounts being opened, through Aadhaar, through UPI, through the entire digital stack of India. Understood? So when you people who are learned people studying CFA program listen to all those political dialogues, you need to look at it at the correct spirit as to what could have happened in the time span. It's easy to say 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में बहुत कुछ हुआ. The infrastructure is being created for us to actually join that club. The club means the club of high per capita income. Whether we'll be able to do that by 2047-50, why not? Definitely possible hai, provided the rhythm keeps on going. Okay, and we do not forget about the structural things, the focus on the trend growth rate, okay, and the focus on moderating business cycle. यही तो policy makers का objective है कि trend growth rate जो है sustainably बढ़े, ठीक है, and business cycles जो है वो moderate हो. That's what is required. But in the midst of all the global geopolitics going on, being able to do that at a visible at a visible pace, which democracy में जो इतने सारे लोग हैं उनको समझ में आए, is very 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 difficult. Understood? तो if you feel like सा आप politics में divert हो गए, मैं divert नहीं किया. ये जो talks है ना, इस talk पे सोचने से chapter becomes much more easier as compared to the chapter. वो क्या लिखेगा chapter में? Understood? अपने पास जीता जागता उदाहरण है. We are living the times where
India's long-term trend growth rate is moving, is making a regime shift. Is making a regime shift, is not like a stock price जिसका दिख जाएगा. सब लोग को दिख रहा तो नहीं है. ठीक है, it takes time. And it's happening because of whatever is being taught in this chapter in a democratic environment. Coming back to the graph. So for the purpose of this chapter का ABCD ये है कि कैपिटल डीपनिंग से क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा. तो आंसर है सर, प्लीज रिमेंबर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अलग चीज था. अभी बात कर रहा हूं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल. द फैक्ट दैट जैसे जैसे के स्टार को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो स्लोप है वो कम होते जाएगा. MPK विल फॉल. कैन यू सी दैट? अगर मैं यहां पे वो बनाते जाता टेंजेंट, तो टेंजेंट फ्लैट होते जा रहा है. इसका मतलब जैसे जैसे के स्टार को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई स्टार इज गोइंग अप एट अ इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट. जैसे जैसे के स्टार को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई स्टार इज गोइंग अप एट अ इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट. जैसे जैसे के स्टार को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई स्टार इज गोइंग अप एट अ इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट. जैसे जैसे के स्टार को इंक्रीज कर रहे हैं, वाई स्टार इज गोइंग अप एट अ इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट. It is going up at a decreasing rate. Okay, it is going up at a decreasing rate. And what is this called? This is law of diminishing marginal returns to K star. Law of diminishing marginal returns to capital. तो एक है constant returns to scale, वो ज़्यादा important नहीं है चैप्टर में. दूसरा है diminishing marginal returns to capital, कि आप अगर capital per unit of labor बढ़ाते जाओगे तो productivity will improve at a diminishing rate. Productivity will improve at a diminishing rate. For those countries which have low K by L, जिनका कैपिटल कम है, उनके लिए कैपिटल डीपनिंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. बट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज विच आर एट वेरी हाई लेवल ऑफ K स्टार, कैपिटल डीपनिंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट. आई डोंट नो मैंने क्या सेंटेंस लिखाया था. इट कैन बी इन्फर्ड दैट capital deepening, okay, is an important source of productivity improvement for India but not for South Korea. ऐसा कुछ लैंग्वेज था. Okay, capital deepening is an important source of productivity improvement for India but not for South Korea. But not for South Korea. लिख लो नीचे में, law of diminishing marginal returns to capital. 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 Arrow देके लिखो. This means as K star increases, comma Y star increases at a diminishing rate. As K star increases, comma Y star increases at a diminishing rate. As K star increases, Y star increases at a diminishing rate. Full stop. Para change. Case 1. Emerging market nations with low K by L. Emerging market nations with low K star, with low K by L. With low K star, with low K by L. Dash. Capital deepening is very important. Capital deepening is very important. Very important. Para change case 2. Para change case 2. Developed nations with high K by L. Developed nations with high K by L. Developed nations with high K by L. Dash. Capital deepening is not very important. Capital deepening is not very important. Capital deepening is not very important. वहीं पे arrow देखिए. Then what is important for them? Then what is important for them? डेवलप्ड नेशंस के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए what is important for them? What is important for them? लिख दो GA. उनके लिए इंपॉर्टेंट है GA. ओके, दैट इज increase in total factor productivity, increase in TFP, and therefore the US is madness about AI, and therefore US ka madness about AI. If you think it is madness going on in US, therefore the madness, otherwise how will they go up the leap? कैसे बढ़ेंगे? There's only one way, GA को बढ़ाना पड़ेगा, and hence AI, AI, AI.
So there could be a Ruchir Sharma whose YouTube video can be released. Recently आया था, US is a one big AI bet. US economy just one big AI bet. There was a YouTube video. I hope you know Ruchir Sharma. I hope you have heard about Ruchir Sharma. Yeah, Delhi guy. There is no response. Am I teaching the wall? Yes, please, are we communicating? Because if we are not communicating, I can have pre-recorded classes. So Ruchir Sharma का भी YouTube पे वीडियो आया था. US is just a one big AI bet. Okay, US is just one big AI bet. If it is true, US is one big AI bet, then Ruchir Sharma was not talking about economic growth chapter. Okay, he was not talking about the economic growth chapter. Economic growth chapter says that a developed economy like US has only one way of continuously moving ahead. What is that one way? GA, growth rate of total factor productivity. That is the only way. And now the natural question, will AI bubble burst, sir? The question is not will AI bubble burst, is it when will AI bubble burst? The question is not will AI bubble burst, it is when will AI bubble burst. But उससे बड़ा question financial market का नहीं है, economy का है. Because will AI bubble burst is a financial market question. Okay, it is not a economy का question. इकोनॉमी का जो क्वेश्चन ये है जिससे आप लोग डाइग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स, ठीक है, इज दैट इवन इफ यूएस इज एन एआई का बेट, in that case what happens in the case of VC funds? What is venture capital? Venture capital is investing in 10 startups and hoping that 2 of them will succeed. Venture capital is investing in 10 startups and hoping that 2 of them will succeed. Do you agree? Venture capital investing is like investing in 10 startups and hoping that 2 of them will succeed. Am I correct? Venture capital is investing in 10 startups and hoping that 2 of them will succeed. So what happens to the remaining 8? What happens to the remaining 8? Sir, they will close down, they will fall, we will lose. But how much will we lose? 100%. How much will we lose? जो पैसा लगाए थे 100%. But वो जो 2 बेट्स से जो सक्सीड होगा उसमें how much can we gain? 1,00,000%. Because ऊपर की तरफ sky is the limit. जो 2 सक्सेसफुल होगा उसमें वी कैन गेन 1,00,000 टाइम्स और 10,000 टाइम्स, बट जो लूज होगा उसमें वी कैन लूज ओनली 100%. ओके, सो लुक एट द मैथ्स. तो इफ यू से दैट यूएस का स्टुपिडिटी है जो एआई में इस तरह पागल के जैसे पैसा बाहर है ऑन डेटा सेंटर्स ऑन द एंटायर इकोसिस्टम. ओके, इफ यू से दैट हाइपर स्केलर्स में इस तरह पैसा बहाना उचित नहीं है, तो यू आर इनडायरेक्टली सेइंग दैट वेंचर कैपिटल होना ही नहीं चाहिए. Which in turns you are indirectly saying that जिनके पास भी नया स्टार्टअप आइडियाज वगैरह है उनको फंडिंग मिलना ही नहीं चाहिए. ओके, किसको पता है? यू आर वांटिंग दैट काश क्रिस्टल बॉल होता जिससे पहले से पता चल जाता कि कौन कौन सक्सीड करने वाला है, केवल उनका दाम बढ़ता और बाकी का नहीं बढ़ता. काश ऐसा होता. ठीक है, देयर वुड हैव बीन अ क्रिस्टल बॉल एंड वी कैन सी द अदर साइड दैट ये सक्सीड होगा, ये सक्सीड नहीं होगा. ठीक है, और जो केवल जो सक्सीड होगा उस पर पैसा लगाया जाता, बाकी सब फेल हो जाते. ब्यूटिफुल सिनेरियो अगर हो पाए तो. But that's not the way it happens. Okay, given the big payoffs which are possible in AI, given the big payoffs, astronomical payoffs which are possible in AI, the investment in AI is but justified. The investment in AI is but justified. Would there be excesses? They always are. Excesses तो होने ही हैं. There is no doubt. Okay, कि animal spirit and excesses will happen, but there is no other way that this particular or technological boom can actually fructify. ठीक है, will AI make an immense future in terms of productivity and all? Answer is yes. But are the markets overpricing the same? The answer is yes. Will AI make an immense impact in future? The answer is yes. But are the markets overpricing that? The answer is also yes.
But which one we don't know. Which one we don't know. Understood? There could be a person like Michael Burry who can go short on AI, who can short the likes of Nvidia, which is trading at $5 trillion, or the likes of Palantir, which is I think trading at 120 times sales. Okay, at 120 times sales. But the point is that he can do that because his investors are those type of investors who are making contrarian bet, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, they are putting money with Michael Burry to buy a put option specifically, कि भाई डूबेगा तो डूबेगा वो पैसा. But others who are fund managers, suppose you all are the fund managers, and if you are in US, in that case, could you have avoided to invest in the AI bandwagon? क्या आप Nvidia को avoid कर सकते थे? Could you have avoided that? Impossible. Because if you avoid that, और जो हुआ 2-3 सालों में जो increase हुआ इनका, तो you will be the outlier negative side में. You will be thrown out of the business. कोई आपको fund नहीं देगा. But those who are investing in AI right now, in Nvidia, in Palantir at these levels, even if they fail, मान लेते हैं Nvidia डूब जाएगा और वो फंड बर्बाद हो जाएगा, तो सभी तो बर्बाद होंगे. So when everybody is barbadified, relative performance wise, the fund manager will not be criticized that much. Will not be criticized that much. But जो अलग चाल चलता है ना, the point is that there is no appreciation for that fellow. In fact, he has to close his house. Because momentum investing में, when you ride a bubble, a tide, it is very, very difficult to call time. कि किस समय the bubble will burst. Even if you can see, you can quantify, and people like us, you know, who are not invested over there, can give dialogues about the fact that हम तो बोला ही था bubble, हम तो बोला ही था, ते तो बोला ही था. जब तेरा खुद का पैसा लगेगा देखेंगे ते क्या बोला था. Understood? Okay. Anyways, financial markets का ज़्यादा बात करने का मेरा मन नहीं था. I wanted to focus on the fact that US वगैरह GA पे फोकस करें. सर क्या इंडिया को GA पे फोकस नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट अपने औकात के अनुसार. इंडिया को GA पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट अपने औकात के अनुसार. तो इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट वो कैपिटल डीपनिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल डीपनिंग में, फिजिकल कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, तो इन दैट केस उसका प्रोडक्टिविटी उससे भी इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, और होगा. इट मे नॉट बी इन द लाइमलाइट, एंड लेट्स होप दैट वो जो कैपिटल डीपनिंग हो रहा है उससे अपना टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. जो कैपिटल डीपनिंग होता है उससे TFP भी बढ़ता है. आई रिपीट वंस अगेन, as a result of increasing K star, TFP also goes up, and that is the drawback of a particular theory called the neoclassical theory. बाद में जाके चैप्टर का पार्ट है. एक तो माल्थूजियन थियरी, माल्थूजियन के बारे में लास्ट क्लास मैंने बोला था, जो कितना फालतू बोला है. रिमेंबर, जो ये बोला कि जब सस्टेनेंस लेवल से लोग ज़्यादा कमाएंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा. ठीक उल्टा होता है. ओके, जिसमें ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होता है उस कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं होता है, फर्टिलिटी रेट डूब जाता है. तो माल्थूजियन तो गया. But there are two other theories. One is the neoclassical theory and the other is the endogenous growth theory. जो neoclassical theory है ना, वो बोलता है कि जब K star को बढ़ाएंगे, we will move along the curve. When we increase K star, we will move along the curve. तो उसे पूछा गया, तो फिर सा ये curve shift कैसे होगा? बोला वो मेरे को नहीं पता. That is exogenous. You know what did neoclassical theory said? जो माल्थूजियन का neoclassical theory, माल्थूजियन का क्लासिकल थियरी था, फिर नियोक्लासिकल ये बोला K स्टार को इंक्रीज करने से Y स्टार कमती रेट से बढ़ेगा. ठीक है, तो कोई उससे पूछा तो सर ये कर्व कैसे शिफ्ट होगा ऊपर? बोला वो लक से होगा. वो मैं समझा नहीं सकता, वो एक्सोजीनियस है. दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ नियोक्लासिकल थियरी. जबकि एंडोजीनियस थियरी है, वो बोला नो, इट इज नॉट एक्सोजीनियस, इट इज एंडोजीनियस. वो जो कर्व शिफ्ट हो रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ द कर्व is not exogenous, it is endogenous. When you increase K star, the curve will also shift upwards. When you increase K star, there will be two things happening. Number one, you will move up the curve, and number two, the curve will shift upwards. दो चीज एक साथ होगा. कैसे सर? कैसे समझा रहा हूं, सुनना ठीक से. एक नया हाईवे बना, एक नया हाईवे बना. Can I call it increase in K star? एक नया हाईवे बना. Is it the increase in K star?
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, नया हाईवे बना, इज इट द इंक्रीज इन के स्टार? ऑफ कोर्स इट इज। अगर ये नहीं है तो और क्या है? इट इज द इंक्रीज इन के स्टार। ठीक है, सुनिएगा, जहां वो हाईवे बना गुजरात में, उधर बहुत फायदा होगा, बिकॉज देयर विल बी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने सारे लोगों का कितना टाइम बचने वाला है, द एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी देयर, तो प्रोडक्टिविटी विल गो अप, नो डाउट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल कम डाउन, ठीक है, फ्यूल सेव होगा वगैरह वगैरह। बट दैट विल बी लिमिटेड टू दैट पार्ट। उधर ही तो होगा ना, अहमदाबाद में जहां बना है वहीं पे तो होगा। क्या कलकत्ता में उसके कारण होगा? नहीं होगा। सर कलकत्ता इंस्पिरेशन ले सकता है, कितना इंस्पिरेशन कलकत्ता लिया है, ठीक है, कैलकाटा लिया है, वो सबको पता ही है, तो लेट मी नॉट गो इनटू दैट। ऑन दी अदर हैंड, ये जो मोदी गवर्नमेंट ने फास्टैग चालू किया, मोदी गवर्नमेंट ने जो फास्टैग चालू किया, अब ये मत बोलना कि फास्टैग क्या होता है। जो जीपीएस चालू किया, जो लाइव ट्रैफिक ट्रैकिंग चालू किया, ओके, ये जो चेंजेस हुए, इसके कारण, इसमें भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें भी पैसा लगा है, ओके, पर ये जो इन्वेस्टमेंट हुए, इसके कारण गुजरात को फायदा हो रहा है, अहमदाबाद को या कैलकाटा को कि नागपुर को कि बॉम्बे को, किसको फायदा हो रहा है? ये जो फास्टैग का सिस्टम हुआ, ये जो जीपीएस का सिस्टम हुआ, ओके, लाइव ट्रैफिक का सिस्टम हुआ, इससे किसको फायदा हुआ? क्या गुजरात को फायदा हुआ, कैलकाटा को फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ? सबको फायदा हुआ, ओके, सबको फायदा हुआ। तो इन दैट केस अगर इन्वेस्टमेंट्स इस टाइप के होते हैं, जो जीएसटी लाया गया, जिसके कारण कितना ज्यादा जीएसटी के पहले प्रॉब्लम था स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर में, वो जीएसटी के कारण कितना एफिशिएंसी आया, क्या टीएफपी बढ़ा है, कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इज द लेवल ऑफ टीएफपी विच हैज गॉन अप, देयर इज नो लिमिट टू इट, अंडरस्टूड। तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल में दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वन इज आईसीटी इन्वेस्टमेंट, द अदर इज नॉन आईसीटी इन्वेस्टमेंट। आईसीटी, नॉन आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा है, मे बी इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, अलग अलग फुल फॉर्म दिया हुआ है, डजेंट मैटर। द फील इज दैट जो मैंने बोला ना, जीपीएस पे इन्वेस्ट किए, जो अपने फास्टैग लाए, दोज आर आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स, और जो ब्रिज बनाए, दोज आर नॉन आईसीटी इन्वेस्टमेंट। तो आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स में जो कर्व है ना, वो बहुत जोर से शिफ्ट होता है ऊपर, और नॉन आईसीटी इन्वेस्टमेंट में भी कर्व शिफ्ट होता है, बट जरा सा। ओके, लेट मी शो यू। और मेरे को आईसीटी का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, ओके, ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज के स्टार, दिस इज वाई स्टार, दिस इज द कर्व, दिस was Korea in 1980. This is Korea in 2020. So that was Korea in 1980 and this is Korea in 2020. Have a look. So कोरिया का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, पर कैपिटा जीडीपी है, वो यहां से यहां बढ़ गया कोरिया का। ये जो बढ़ा, इसको अगर स्लाइस करें, so this part of the increase is attributed to capital deepening, it's on the same curve, and this part of the increase is GA. So this part of the increase is alpha into GK star and this part of the increase is GA. So the total increase GY star, okay, GY star is GA plus alpha GK star. Can you see that? The total increase in Y star, sir, is equal to GA plus alpha GK star. तो कोरिया ने जो इन्वेस्ट किया ना के स्टार में, ये के स्टार था, ये के स्टार हो गया, ये जो इन्वेस्ट किया उससे
कैपिटल डीपनिंग वाइज भी फायदा हुआ और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वाइज भी फायदा हुआ. Okay, they invested a lot in building bridges. Infrastructure in South Korea is unparalleled, there's no doubt, and therefore they moved up the brown curve. But at the same time, they invested in technology, they invested in computers, they invested in processes, and that led to increase in total factor productivity. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सपोज SSCI, और SSCI 10 सेंटर्स खोलता है, से SSCI का 20 सेंटर्स है और 10 सेंटर और खोलता है. इज इट इंक्रीज इन K स्टार और इज इट ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी? SSCI का 20 सेंटर्स है, SSCI 10 ट्यूशन सेंटर्स और खोलता है. इज इट इंक्रीज इन K स्टार और इज इट ग्रोथ रेट ऑफ TFP? आई एम आस्किंग यू. SSCI का 20 सेंटर्स है, 10 ट्यूशन सेंटर्स और खोलता है. Is it increase in K star or increase in total factor productivity? Of course it is increase in K star. क्या किए? Capital per unit of labor वो बढ़ाएं. SSCI will definitely grow as a result of the 10 centers. Okay, in terms of our revenue, no doubt about it. However, SSCI suppose is functioning with outdated technology. यानी कि हमारे पास जो काउंसलर्स है, सपोज से 15 काउंसलर्स का टीम है और वो 15 काउंसलर्स का टीम जो है ना, वो डायरी मेंटेन करता है, डायरी, और डायरी के अंदर किसको किसको कॉल किया लिखता है. ठीक है, किसको किसको कॉल किया लिखता है. मेटा पे ऐड चलता है, उससे लीड्स आता है, कभी कॉल करता है कभी नहीं करता है. गूगल ऐड चलता है, उससे कॉल आता है, लीड आता है, कॉल करता है नहीं करता है. जिस भी स्टूडेंट से बात हो जाता है कि हाँ हाँ मैं करूंगा, मेरे को बताइए कैसे पेमेंट करना है, उसको बैंक अकाउंट का डिटेल्स भेजता है, आधा घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 4 घंटे बाद. ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल भेजता है. जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो इन दैट केस जैसा आपके साथ होता है, यू रजिस्टर विद द कोर्स एंड देन आपको ऐप का एक्सेस वगैरह 24 घंटे 48 घंटे बाद मिलता है. व्हाट इज दिस? दिस इज अटर लैक ऑफ एफिशिएंसी, दिस इज हाइट्स ऑफ इनएफिशिएंसी. ये जो होता है, देयर शुड बी अ CRM वी शुड बी यूजिंग, और CRM में डैशबोर्ड पे सब चीज अपडेट हो. ठीक है, सो दैट द CRM मिसेस आउट नो लीड्स. मेटा, गूगल एड, सब जगह का लीड्स जो है वहां पे कैप्चर होके वहां पे पूरा का पूरा डिटेल्स आए. द मैनेजर हु लुक्स एट द सेम इज एबल टू सी किसको कॉल हुआ, किसको कॉल नहीं हुआ. ठीक है, जिसको भी हुआ तुरंत उसको एक्सेस मिले. जो कोर्स परचेस करना चाह रहा है तो उसी में उसका लिंक चला जाए, सो दैट ही कैन स्ट्रेट अवे परचेस. नाउ दैट इज ICT इन्वेस्टमेंट. ओके, दैट इज ICT इन्वेस्टमेंट. तो ICT इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दैट. द प्रॉब्लम विथ सो मेनी micro, small and medium enterprises including myself when we start at a very base level. कैसे स्टार्ट किया था मैंने, घर जा जाके पढ़ा के, फिर कैसे, फिर इसके बाद जगह लिया, ये वो. तो द प्रॉब्लम विथ ऑल दीज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज दैट देयर इज अ लॉन्ग रनवे. दोज हु हैव द परसिवियरेंस एंड लॉन्ग रनवे में आगे जाके दे आर एबल टू परहैप्स डू द ICT, नॉट day 1. ओके, day 1 यू विल से दैट सर 1995 में आपने क्यों नहीं कर दिया, 2005 में क्यों नहीं कर दिया. सेम हाल. ठीक है, paucity of capital, paucity of time and so on and so forth. So the chapter is so much commonsensical, okay, that you will do a lot of disservice to yourself by taking it as very very complicated. It is very easy. Understood? तो यहां पे आपको 2 थियरीज और पता चल गया. माल्थुसियन तो फालतू का थियरी है ही, छोड़ो उसको. कि एंडोजीनियस ग्रोथ थियरी, सॉरी, नियो क्लासिकल थियरी बोलता है कि ब्राउन कर्व पे ही रहोगे बच्चा तुम, और अगर तुम ऊपर पहुंच गए हो ब्राउन कर्व पे तो तुम्हारा ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा, और हो गया तो इन दैट केस राम भजन करो, उससे होगा, बिकॉज एक्सोजीनियस है. एंडोजीनियस ग्रोथ थियरी बोलता है कि नो, जो अपने K स्टार में इन्वेस्ट करते हैं और खासकर ICT इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दैट TFP गोज अप. विल डिस्कस मोर डिटेल, कैसे से एग्जैक्टली बताइए, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी. ठीक है, बट स्पेशली इन्वेस्टिंग इन ICT टाइप ऑफ K स्टार हैज अ फिनोमिनल इफेक्ट ऑन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. अंडरस्टूड? सो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल थियरी, इंडिया US के पर कैपिटा इनकम के बराबर हो पाएगा. इंडिया का पर कैपिटा इनकम आज के दिन $3,000 होगा, US का शायद $60,000 है. तो इंडिया उसका मुकाबला कर पाएगा, बिकॉज इंडिया कर्व में ऊपर जाते जाएगा और US तो वहां अटक गया है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल. बट अकॉर्डिंग टू इंडोजीनियस,
इंडिया यूएस का मुकाबला मोस्टली नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा। क्यों? बिकॉज यूएस टीएफपी को बढ़ा बढ़ा के आईसीटी में इन्वेस्ट कर करके यूएस आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ओके, आपने उनका मुकाबला पर कैपिटा इनकम वाइज नहीं कर पाएंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस इसलिए बाहर में शिफ्ट कर जाते हैं। दे शिफ्ट टू दुबई, दे शिफ्ट टू यूएस, दे शिफ्ट टू सिंगापुर। ठीक है, लेट्स हैव अ शॉर्टकट टू गेटिंग दैट हाई पर कैपिटा बाय गेटिंग दोज टैलेंट, बाय गेटिंग दोज स्किल्स और वॉट एवर इट इज। ओके, एक क्वेश्चन भी नहीं किया अपने जब से। एट व्हाट टाइम डिड आई स्टार्ट? आई स्टार्टेड एट 9 o'clock, है ना, 9:55 हो गया। एंड आई फील दैट, मतलब मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा नॉलेज अच्छे से निकल जाएगा चैप्टर का। मैंने पीपल लाइक कैलाश हु हैज़ डन द चैप्टर अर्लियर एंड ही इज़ जस्ट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ अ सेकेंड रीकैप, ठीक है, वुड बी इमेजिनिंग दैट यार लास्ट वाला पार्ट भी हो गया, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया, और लगा भी नहीं कि पढ़ाई कर रहे, लग रहा बातचीत कर रहे। मैंने ऐसा अगर हो रहा होगा तो दैट्स वंडरफुल, ब्यूटिफुल, बिलीव मी, ठीक है ना, बिकॉज दैट विल मेक यू, जब एग्जाम पास आएगा यू विल फील दैट ओके वो चैप्टर तो यार ऐसे ही था, ठीक है, और थोड़ा ऑडियो सुन लेते, देख लेते रफ नोट्स क्या लिखाया हुआ है, क्यों इतना बर्डन लें। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट लिटमस टेस्ट? डू द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस हो रहा है तो यू आर द चैंपियन, ठीक है, अगर क्वेश्चंस हो रहा है तो यू आर द चैंपियन। देयर इज नो बेटर टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग देन क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस हो पा रहा है तो। एनीवेज, आओ इस पे आते हैं। थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना, बिकॉज वाई शुड बी बर्बादोफाई आवर डिस्कशन। थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना कि ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, ये वाला ग्राफ प्लीज ड्रॉ करो। कोरिया इन 1980, ब्राउन वाला कर्व, फिर कोरिया इन 2020, मन से लिख रहा हूं, कोरिया का ये वाला कर्व था, मे बी वाई स्टार इज इक्वल टू 5 इंटू के स्टार टू द पावर 0.7, और कोरिया का जो ये वाला ग्राफ है दैट इज वाई स्टार इज इक्वल टू 15 इंटू के स्टार टू द पावर 0.2। देखो प्लीज, कोरिया का जो ग्राफ है ना, दोनों प्रोडक्शन फंक्शन, मन से मैंने लिखा है, इट वॉज 5 times k स्टार टू द पावर 0.7, इट इज 15 times k स्टार टू द पावर 0.2, तो 5 का 15 हो गया। अल्फा मैंने मन से लिख दिया, जस्ट द फैक्ट दैट मैं के स्टार को रेड वाले कर्व में कमती इंपॉर्टेंस देना चाह रहा था, therefore I did 0.2. I did not have too much of a thought about that. My focus was on 5 and 15. My focus was on 5 and 15. आपने ड्रॉ कर लिया है तो बताना, तो मैं बगल में कुछ लिखाऊं। इन केस यू हैव ड्रॉन, तो मैं बगल में कुछ लिखाऊं। यस प्लीज। दीपिका, काम की चीजों पे ध्यान दो, और अगर वो जानना ही है तो जीपीटी में रिसर्च कर लेना। माई टीचर गेव दिस ग्राफ, आई वॉज वंडरिंग हाउ डिड 0.7 बिकेम 0.2, कैन यू एनलाइटन? खुद का रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना, देयर इज अ लिमिट टू व्हाट कैन बी डन इन क्लास। ओके, पीपल हैव ड्रॉन, तो आप लिखे प्लीज। नियो क्लासिकल थियोरी, नियो क्लासिकल थियोरी, नियो क्लासिकल थियोरी, according to this theory according to this theory, a country can consciously only grow along the curve. A country can
only consciously grow along the curve, that is through capital deepening. A country can only consciously grow along the curve, that is through capital deepening. Through capital deepening, and that too will reach a plateau, and that too will reach a plateau, and that too will reach a plateau. In the steady state, that too will reach a plateau in the steady state. In the steady state. Bracket to be discussed later. Bracket to be discussed later. वो steady state वाला part तो बाद में ही पढ़ पाएंगे. Bracket close. Full stop. Of course, TFP may go up. Of course, TFP may go up, but that is exogenous. TFP may go up, but that is exogenous and not explained by the model. TFP may go up, but that is exogenous. That is exogenous. Parachange. Endogenous growth theory. Endogenous growth theory. Endogenous growth theory. According to this theory, growth rate of TFP is a function of growth rate of K star. Growth rate of TFP is a function of growth rate of K star. And specially about the composition of K star, dash ICT investment or non-ICT investment, ICT investment or non-ICT investment. ICT शायद है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. ओके, कोर में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से ये फुल फॉर्म है कोर में. जेमिनाई जीपीटी से मत पूछ रहा, मैं कोर का बोल रहा हूँ. इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्सेस नॉन आईसीटी इन्वेस्टमेंट. फुल स्टॉप. आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स हैव अ ट्रिमेंडस impact on GA. ICT investments have a tremendous impact on GA. So more discussion on it next class. More discussion on it next class. ना एक बार प्लान ऑफ एक्शन सुन लो सभी जन प्लान ऑफ एक्शन सुन लो आगे के क्लासेस का. प्लान ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा प्लीज. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी अ लिटिल बिट ओवर द लास्ट 1 year, 1.5 years, you know that from 2024 I have come into a very high level of aggressive mode into revamping the CFA classes. And I have a lot of agenda left. Okay, अभी तो मैंने शुरुआत की है. तो this year 2026 is going to be devoted to uplifting the CFA level 2, okay, to Mount Everest levels. And for the purpose of doing that, अभी जो short term plan at hand है वो ये है कि हम लोग 2 December जो है तब से जो स्टूडेंट्स नवंबर 25 में CFA L1 दिए थे, चाहे SSCI के चाहे नॉन SSCI के, जो CFA लेवल 1 नवंबर 25 में दिया है, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट्स अवेटेड है, वो लोग सबको 2 December से इस बैच में एंट्री दे रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस. वी आर गिविंग देम एंट्री इनटू दिस बैच. मतलब ओनली द ट्यूसडे थर्सडे बैच, नॉट द मंडे वेडनेसडे. ट्यूसडे थर्सडे बैच में उन लोग को एंट्री अलाउ कर रहे हैं 1 महीने के लिए, फॉर 1 month. ठीक है.
सो बिकॉज उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया, वो लोग पास हो जाएंगे, बट आई डोंट वांट देम टू पे राइट नाउ। उनके साथ अपने ट्यूसडे थर्सडे को हेज फंड वाला क्लास करना चाह रहे हैं। ट्यूसडे थर्सडे को वी वांट टू डू हेज फंड विद देम, ठीक है। तो हेज फंड का शायद 6 क्लास हुआ है अभी तक, एंड 6 क्लास मिला के 10 घंटे हुआ होगा। ओके, 2 क्लास तो यूट्यूब पे ही है, टोटल 10 घंटे हुआ होगा। तो मैंने अभी तक 2 स्ट्रैटेजी करवाया है, एक अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी, एक इवेंट ड्रिवन। यू वुड सी दैट थोड़ा 2-3 क्लासेस हेज फंड का नहीं हुआ, उसका एक कारण वो भी था बिकॉज आई वॉज प्लानिंग दैट वे। तो ट्यूसडे को मैं उनको एंट्री दूंगा हेज फंड में, और हेज फंड में आई विल स्टार्ट अ न्यू स्ट्रैटेजी ओवर देयर। न्यू स्ट्रैटेजी मतलब सबको समझ में आएगा, उनको भी, और वो लोग शुरू का जो क्लासेस है वो कर लेंगे, जो 6 क्लासेस हुए। एंड मंडे वेडनेसडे अपने जो है वो चलाते जाएंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। मंडे वेडनेसडे मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता रहेगा। कल जो है, कल शाम को जो हेज फंड वाली क्लास होती है, वो हेज फंड के बदले अपने ये इकोनॉमिक्स वाले ही क्लास करने वाले हैं कल शाम को, ठीक है। बिकॉज हेज फंड का नया स्ट्रैटेजी मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उनके साथ। तो टुमारो इवनिंग, ओके, वही 8:39 आई टेल यू, वी विल कंटिन्यू विद दिस क्लास ओनली, ओके, जो मैक्रो वाला क्लास है, सो दैट नेक्स्ट वीक से अपने उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जाके अपने अब कर चलता गया मैक्रो, चलता गया हेज फंड। समवेयर अराउंड बिगिनिंग ऑफ जनवरी अपना मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो जाएगा, उसमें करेंसी स्टार्ट हो जाएगा, और हेज फंड स्ट्रैटेजी जो है खत्म हो जाएगा। वहाँ पे जो है अपने स्टार्ट करेंगे QM एंड FSA। क्या स्टार्ट करेंगे? QM एंड FSA, एक्स्ट्रा डेज को ऐड करके QM एंड FSA। तो QM, FSA एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द वे इन विच वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस, ठीक है। लोगों का एग्जाम अलग अलग टर्म में है, किसी किसी का मई में है, वो बहुत सारा टॉपिक कर चुके हैं, उनको भी हम लोग एक्सेस दे रहे हैं। दे वॉन्ट दे कैन डू अ रिविजन, दे डोंट वॉन्ट दे कैन जस्ट गो बाय देयर प्रेपरेशन, इट डिपेंड्स। जिसका एग्जाम लेट से ड्यू है, अगस्त या नवंबर, वो ज़्यादा क्लासेस कर सकता है, ठीक है। दैट वे सूट योर सेल्फ। तो दिस इज़ द वे इन विच वी विल गो अबाउट, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को फिर से अराउंड 8:39 वट एवर। आई फिक्स द टाइम एंड टेल यू द टाइमिंग्स, एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, नॉट हेज फंड स्ट्रैटेजी, टुमारो, ओके। हेज फंड स्ट्रैटेजी ट्यूसडे से वापस से स्टार्ट होगा। चलो बाय।